Hello friends, during my various seminars and various lectures, various interaction with the people, I always vouch for the local food, local grains, local fruits and vegetables. Various grains which are rustic in nature have been locally and traditionally used in our countryside and in our village communities. And the beauty is that these foods are becoming slowly very popular among urban elite also. It has become a fashion nowadays to go for the traditional rustic foods. The reason is that they are loaded with immense nutritive values and they are full of vitamins, minerals, then the elements and antioxidants, proteins of very high quality. So even nowadays in urban elite also these has become very popular, and it has become the fashion nowadays to go for such rustic foods. I always say in my seminars that the these grains, these carbohydrates, they contains lot of uh, carbohydrates, and the consumption of carbohydrates is maximum in our Indian diets, and this is also one of the reason why the people are getting obesity, because ultimately it's getting converted to sugar. People are getting diabetes. So the very important issue in this is that although we are consuming a lot of carbohydrates in this, what is the fiber content in this? The maximum food which is being consumed is either wheat, flour, maida, or it is rice and rice products. And both of these have high level of carbohydrates in it. And there is a concept called C by F ratio, that is carbohydrates divided by fiber. That means C by F ratio. If the C by F ratio, carbohydrate divided by fiber, that means C by F ratio is less than 10. If it is less, it means the fiber content in that grain or carbohydrate or in that food is very high. If the C by F ratio is less, it means the fiber content in that particular grain or particular cereal is very high. Although carbohydrates is definitely there, but if we divide carbohydrate with the fiber, the ratio is coming lesser. Reason being, there is a high carbohydrate, there is a higher carbohydrate, there is a high fiber content in this, and because of that this ratio is coming lesser. If this C by F ratio is higher, it means carbohydrates content is more and fiber content is very less. Let us take the examples of grains like wheat and rice. Can you imagine that wheat has a carbohydrate by fiber ratio approximately 70 to 90, 95. This is the ratio. That means very high content of the carbohydrates and less fibers. Although there is some amount of fibers available in wheat also, but still the carbohydrates present in wheats is very high. Second thing is rice. Rice is one thing where fiber ratio is almost nil. Carbohydrate is really very high, and the C by F ratio is found to be anywhere between 250 to 350. 250 से लेकर 350 के बीच में इसका कार्बन C by F ratio होता है, which is very high. That means whenever you eat rice, you are consuming a lot of carbohydrates, and this ratio, because of this higher ratio, this is immediately within 1-2 hours getting converted into sugar. So is the case of wheat. Wheat भी आपका 2-3 घंटे के अंदर ही is get converted into sugar, because fiber content in both cases
is quite low. और इंडियन पॉपुलेशन में 99.99% wheat और राइस को ही ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है. The consumption of wheat and rice is almost 99.99%. Then comes the millets, barley, maize. ये सारे ग्रेन्स हैं जो ट्रेडिशनली गाँव में यूज़ होते थे और अभी भी यूज़ होते हैं, अब थोड़ा कम हो गया है. आपको सुन के हैरानगी होगी, you will be surprised that the C/F ratio is anywhere from 20 to 45. That means the carbohydrate divided by fiber ratio is optimal because the fiber content in this food is very high. दूसरा मैंने बताया कि इसके अंदर जो है lot of proteins, the complex proteins are available, variety of proteins are available. Then iron है, कैल्शियम है, बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे they are loaded with lot of health benefit. तीसरा आता है the millets where the C/F ratio is less than 10. इसमें बहुत छोटे साइज के मिलेट्स आते हैं, ये स्मॉल ग्रेन्स मिलेट. ये भी हमारे कंट्री साइड में, खासतौर पे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ऐसे और यूपी में यूपी, बिहार, राजस्थान में बहुत ज़्यादा जगहों पे ये उगाया जाता है. लेकिन इसकी पैदावार थोड़ी कम होती है, दैट इज़ बाई, बट दे आर द मोस्ट बेनिफिशियल बिकॉज हियर द C/F रेशियो इज लेस देन 10. C/F रेशियो यहाँ 10 से कम है. इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट तो इसके अंदर है ही है, लेकिन जो फाइबर कंटेंट है वो इतना ज़्यादा है कि दिस इज वेरी गुड फॉर योर गट सिस्टम. C/F रेशियो कम होने का मतलब समझते हैं क्या होता है? मतलब आल्दो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसके मुकाबले में फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है. दूसरा मैंने बताया कि ये स्मॉल मिलेट्स हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, सो ऑन सो फोर्थ, और प्रोटीन्स, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स ऑफ एवरी काइंड इज अवेलेबल इन दिस. सबसे बड़ी बात यह है कि व्हेन यू कंज्यूम दिस मिलेट्स, इसका रोटी खाते हो या इसको किसी भी फॉर्म में खाते हो, इट टेक्स मिनिमम 7 to 8 आवर्स फॉर गेटिंग डाइजेस्टेड. वो भी स्टैगर्ड मैनर में डाइजेस्ट होता है. यानी कि अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट होने में आपको 7 से 8 घंटे लग रहे हैं, तो जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, इट्स नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इमीडिएटली इनटू शुगर, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू शुगर इन अ स्टैगर्ड मैनर. आप समझने की कोशिश करिए कि इसमें अगर 8-9 घंटे लग रहे हैं डाइजेस्ट होने में, तो जो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्शन है शुगर में, उसको भी 7-8 घंटे लग रहे हैं. तो यानी कि जो राइस और व्हीट के केस में 1-2 घंटे के अंदर ही पूरा द ब्लड इज bombarded with sugar, lot of sugar immediately released into the blood. वो इस केस में क्या हो रहा है, 8-9 घंटे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा करके रिलीज हो रहा है शुगर. और ये इतना जबरदस्त है. एक तो गट सिस्टम आपका बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि गट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है. इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, और आपके गट सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट इट, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन इट. दूसरा, ब्लड के अंदर जो शुगर है वो इट्स अ सस्टेन्ड रिलीज, नॉट अ सडन राइज. तो और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि आपके जो ये वेरियस टाइप मिलेट्स हैं, ये आपके शुगर को कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ने नहीं देते हैं. जो शार्प राइज शुगर में होता है, that doesn't take place. तो उससे ये ऐसे लोगों को जरूर खाना चाहिए जिनको शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम है. ये ऐसे लोगों को भी जरूर खाना चाहिए जिनमें मोटापे की शिकायत है, बिकॉज मोटापे का मतलब ये है कि इमीडिएटली ब्लड शुगर आपके बढ़ रहा है और आप अपना कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, एंड वॉट एवर एक्स्ट्रा इज देयर, इट इज गेटिंग कम्युलेटेड एज फैट्स इन योर बॉडी. तो अब क्वेश्चन आता है कि ये कौन से ऐसे मिलेट्स हैं. तो ये मैंने इनको हम पॉजिटिव मिलेट्स भी बोलते हैं. पता है, इनको हम पॉजिटिव मिलेट्स बोलते हैं क्योंकि इनका C/F रेशियो जो है वो लेस देन 10 है. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, फॉक्स टेल मिलेट है, इसका C/F रेशियो 8.98 है. ऐसे एक ब्राउन टॉप मिलेट है, उसका 4.9 है. एक कोडो मिलेट है, इसका थोड़ा 10 से थोड़ा सा ज्यादा 12.73, बट इट इज गुड. एक वर्नयार्ड मिलेट है, वो 4.82 है, और लिटिल मिलेट है 8.63 है. ये मार्केट में अवेलेबल है.
तो इसका फ्लोर भी अवेलेबल रहता है। आप इसको पांचों मिलेट्स मंगवा के उसको मिक्स करके, इवन थोड़ा वीट के अंदर थोड़ा मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ से साबुत मिलेट भी मंगवा सकते हो, उसको आप एज ए दलिए की तरह यूज़ कर सकते हो। जहाँ कुछ उसका अच्छा सा बना सकते हो, यू कैन मेक मनी डिशेज आउट ऑफ इट। वो आप किसी भी एक यूट्यूब वीडियो पे आप देख सकते हो किस तरह की चीज़ें इसमें बनाई जा सकती हैं। इनको थोड़ा सा रात को भिगो दीजिए और सुबह जो है इसको बढ़िया इसके अंदर कुछ चीज़ें और मिक्स आप करके, वेजिटेबल काट के थोड़ा मिक्स करके इसको बना दीजिए। इट विल एक्ट एज ए स्नैक आल्सो। और रोटी अगर बनानी है तो इसका आटा पीस के रख दीजिए और उसको बना के रोटी बनाइए। थोड़ी ड्राई रोटी बनती है, लेकिन थोड़ा घी भी लगा के इसको आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी गुड। जैसा मैंने कई बार बताया, सारे मिलेट्स जो हैं दे आर लोडेड विद गुड क्वालिटी प्रोटीन्स। बहुत अच्छा प्रोटीन होता है इसके अंदर, आपको और ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं। इसके अंदर विटामिन मिनरल बिल्कुल भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि डजंट गेट डाइजेस्टेड ऑल ऑफ ए सडन। इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। स्टैगर्ड वे में ये डाइजेस्ट होता है, जिससे आपका शुगर लेवल इट नेवर रीचेस। क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर लेवल का राइज होने का कारण यही है कि वी टेक दिस कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट ही मेन कारण है। शुगर तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करते हैं अपने लिए। तो ये उस चीज़ को कम करता है। तो आप अपनी डाइट में इन पॉजिटिव मिलेट्स को लाइए, यानी जिनका सी वाई एफिनिशन लेस देन 10 है। और चाहे तो आप एक जीरो मिलेट्स भी होता है, न्यूट्रल मिलेट बोलते हैं, जैसे बारले है, फिर आपका बाजरा है, उस तरह की चीज़ें जो हैं, ठीक है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मिलेट्स है, बारले है, मेज़ है, इस तरह की चीज़ें भी जो है, ये भी इनको न्यूट्रल मिलेट्स बोलते हैं, उनको आप कंज्यूम कर सकते हो। कोशिश करेंगे वीट और राइस को जितना कम कर सके उतना करें, कम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको आप स्टॉप करिए, लेकिन उनको अपनी लाइफ में थोड़ा कम करिए। अगर आपको रियली में शुगर से, डायबिटीज से, मोटापे से, हार्ट डिजीज से आपको फ्री होना है। और इसके साथ ही आप फ्रूट वेजिटेबल्स लेते रहिए, और जो और चीज़ें हैं वो भी अपनी लाइफ में लाते रहिए। लेकिन जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट की बात है, तो इन पॉजिटिव मिलेट्स को हमेशा अपनी लाइफ में यूज़ करिए। और वीट और राइस जो है इनको नेगेटिव मिलेट बोलते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है और फाइबर सबसे ज़्यादा कम होता है। वो आपके ना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, ना आपके शरीर के लिए अच्छा है। और आपकी जो डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो पैंडेमिक की तरफ फैल रही है, वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और मोटापा है, और हार्ट डिजीज़ है। इनसे अगर आपको दूर रहना है तो प्लीज़ शिफ्ट ओवर टू दिस पॉजिटिव मिलेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।